हेलो दोस्तों, टॉक विद शिवा मौर्य के तीसरे एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हमारे साथ हैं उनका परिचय देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि इनकी वीडियोस देख के मुझे बड़ा नॉस्टैल्जिया फील होता है। मैं एक्चुअली तमिल स्कूल में 2 साल पढ़ा हूँ, तो काफ़ी मेरा साउथ इंडियन एक्सेंट से काफ़ी ज़्यादा परिचय है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है वो एक्सेंट। और साउथ से ही आज के हमारे गेस्ट भी हैं, तो ज्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं विवेक मुरलीधरन का, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और भाई धमाल मचा रहे हैं। और इनका जो एक वीडियो है, जो मेरा फेवरेट वीडियो है सारे स्टैंड अप्स में से, मैथ्स वाला, वो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा, वो देखो, बड़ा मजा आने वाला है आज। तो चलिए स्वागत करते हैं विवेक भाई का। तो विवेक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपने बारे में थोड़ी सी बातें हम लोगों को बताएं। हेलो। Hi. Where were you studying in Tamil Nadu? Or Tamil I Nadu? wasn't studying in Tamil Nadu, but I was in Tamil school in Delhi. It's called Delhi Tamil Education. Delhi Tamil Education Association, DTEA. क्यों क्या किए तुम्हारा पेरेंट्स तेरे साथ, क्यों ऐसे किए? Like I don't know, but actually मैं थोड़ा केस ये था कि मैंने प्लेस चेंज किया था. So I shifted from South Delhi to Central Delhi. So I have to got admission in any school. So at the time of July I got admission. So only that school was available. So that's why I got admission. Nice. तो दिल्ली में तमिल पढ़ रहा था तू? Not Tamil, but I was just got an exposure in that accent. अच्छा ठीक है, fine. I will. It feels like I am taking the interview now. अच्छा तो. But very interesting, man. I have never heard this. Okay, तो विवेक भाई अपने बारे में भी आप अब थोड़ा बताओ। मेरे बारे में तो आपने जान लिया कि किस तरीके से मैं स्कूल में पढ़ा हूँ। तो so I was born and brought up in Chennai. ऐसा like मेरा बहुत डिफरेंट स्टोरी है कि मैं ऐसा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जो स्टैंड अप कॉमेडी चुना. So that's something which never happens in India. Oh, just kidding. It never happened. I don't remember any name of any engineer or doing stand-up comedy. यार कभी-कभी लगता है मैं कुछ और, like I wish I had some other background, you know, like ऐसा, like MBA, Tamil who has sailed into Tamil Nadu और वहाँ से stand up करना शुरू किया. पर I think there would have been different issues in my life, but let's not go there. But yeah, software engineering, got frustrated with the job, started doing stand up. And right now I left my job in January and I'm doing it full time right now. So I picked the right time, I guess. So when did you started doing comedy, like as your first open mic type? First open mic was somewhere around October to December 2015. तो उसके पहले there is this group in corporate companies called Toastmasters. I don't know if you've heard of it. No. You haven't? So हर corporate company में ऐसा एक group रहता है Toastmasters करके. So basically if you're lonely and you need someone to talk, ऐसा एक group बना के तो वो लोग ऐसा meetings रखते थे यार, to improve communication skills करके बोलते थे. But you know it's about only tafri. Yeah. So I started doing humorous speeches there, and I met this other comedian. I don't know if you know him. His name is Rajshekhar Mamidana. So he started mentoring me Toastmasters. Then he said, "मैं stand up करता है, तुम भी आ जाओ वहाँ पे." And from there he ruined my life. So yeah, that's okay. That's very beautiful that he ruined my life. So okay. Okay, so brother, what do you think about that? Most of the like science people are coming in this entertainment industry, like in stand-up comedy and in other industries like music industry, and most of them are becoming rappers and all. So what do you think, how they are getting diverted to this region rather than going into IT or any other field related to engineers? So I feel most of the people who took science in India at least didn't actually want to take science. Right. It is because India is in that place in the world
where हमको engineers produce करना है. So it's like there is this big requirement in our education system that we push scientists and engineers in this thing because economically we are like that as a country, right? But what does that mean to us as individuals? हम फोर्स किया जा रहे हैं कि ऐसा साइंस करो, इंजीनियरिंग पढ़ो. फिर ऐसा जब थोड़ा पैसा आ जाता है और पेरेंट्स पे उतना you don't have to depend on your parents for money and all that, थोड़ा इंडिपेंडेंस आ जाता है, हम खुद के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि यार मेरा और भी इंटरेस्ट था, मेरा जिंदगी क्या है, ये ही है क्या, is this, then people get into music, people get into photography, people get into driving Uber, everything. So like everybody has their own passions. That's how it is happening. Okay. So this is how it is happening, and this genre of comedy, like many people are getting into it nowadays, but back then, like if I talk about in 2014 or 2013, there wasn't that much of this genre wasn't that much famous. So how do you think that the time has changed and stand-up comedy has become prime of YouTube? Like people are watching stand-up comedy. So how do you feel and how it has changed? It has changed because like I think urbanization in the city in India has increased from not only are the main cities becoming bigger and bigger, but like the smaller cities are becoming smart cities. The towns are becoming smart towns. Like along with your smartphone, your towns, cities, everything are becoming smarter. So people have access to a lot of entertainment. So that is basically one reason. जब से Jio आया, for example, before that 1 million views used to be a huge thing. Then Jio came in, and then it kind of created a market where so many people were watching. But there were a few people actually coming to shows that even if you get like around 7 million, 8 million views on YouTube, you still can't guarantee that in some places you will get this much of an audience. So like on one hand, we feel happy that we're making money from YouTube. But the reason why we put out videos on YouTube is that so that people will come to our live shows. But we are not sure of that anymore. So that is the change which has happened for us, basically. अच्छा, एक चीज काफी सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस ने और भी मेंशन करी है कि जैसे मान लीजिए आप लोग पहले शोज कर रहे थे, तो शोज के बाद आप लोग यूट्यूब पर आए कि हाँ भाई यूट्यूब पर थोड़े व्यूज चाहिए हम लोगों को. देन उसके बाद आया इंस्टाग्राम. तो लोगों को मतलब जो न्यू स्टैंड अप कॉमेडियंस थे, मतलब बाकी लोग तो इंस्टा पे काफी जल्दी उसको एक्सेप्ट किया. स्टैंड अप कॉमेडियंस तब भी यूट्यूब पर वीडियोस डालकर ये सोच रहे थे कि इंस्टा पे भी लोग फॉलो करेंगे. बट लाइक आकाश मेहता वंस सेड दैट यार मेरे को इंस्टा पे जाके फॉलो करो, बट प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. इनफैक्ट वी आर रिकॉर्डिंग दिस फॉर दैट पर्पस. आई वांट टू पुट आउट अ यूट्यूब वीडियो. इट्स कॉल्ड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. तो वो चीज कैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस करते हैं कि यार इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए, क्योंकि अब तो लोग डालते हैं कि हाँ सोशल मीडिया हैंडल्स हमारा ये है. मेरे को एक्चुअली पता नहीं यार क्या करना है, क्योंकि मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ इंस्टाग्राम लेके. क्योंकि अब तक मैं स्टैंड अप कॉमेडियन था, मेरा ओपिनियंस मेरे को बताना है कहीं पे. एक स्टेज मिल गया जहां पे मेरे को जो लगता है मैं बात कर सकूं आफ्टर परफेक्टिंग एवरीथिंग, राइट. कि ऐसा द मैथ्स बिट व्हिच यू लाइक, दैट वाज ऑन द वर्क around 7 to 8 months before it became a YouTube video. How many of you like maths here? How many of you hated maths? Give me a cheer. अभी क्या हो गया, अगर not only Instagram, Twitter में भी people need followers, but Twitter और Instagram is a ground for influencers basically. तुम जैसे दिखोगे, ऐसा फोटो डालोगे तो then you keep getting followers. Twitter पे you need to have an immediate comment about something. अगर मोदी जी आज कुछ बोले तो ऐसा 5th second you need to have an opinion and you need to form a joke about it, and then you need to add, which is something which is not stand up, because stand up is your personal opinion which has come over a long time. So I am struggling between कि ये मैं कैसे करूं. तो बेसिकली आई विल आल्सो आस्क योर व्यूअर्स हूएवर आर देयर, लाइक प्लीज मुझे फॉलो करो इंस्टा पे. और कुछ बोलने का नहीं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे विवेक भाई के सारे जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं, और मेरे भी सोशल मीडिया जितने भी हैंडल्स हैं सबके लिंक नीचे दिए हुए हैं. और ये चीज मैंने वैसे काफी देखी है
कि एक्चुअली अभी इंटरव्यू खत्म कर सकते हैं क्योंकि मैं इसीलिए आया वैसे तो फॉलो करो मुझे। ओके, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो हमको। इसीलिए लोगों को YouTube पे बुला के हम बोल रहे हैं कि इंस्टाग्राम जाओ। YouTube पे बुला के हम लोग, ये हमारा घर है, हम बोल रहे हैं हमारे फार्म हाउस पे आओ। ओके ओके ओके, क्या अच्छा पड़ रहा है यार। ओके, तो अब थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस पे आते हैं। विवेक भाई, आपने जनवरी में अपना जॉब पूरी तरीके से क्विट करके अब कॉमेडी करने का सोचा, तो लाइफ कैसे चेंज हुई आपकी कि पहले आप जॉब कर रहे थे, जॉब के साथ कॉमेडी कर रहे थे, और अब आप टोटली कॉमेडी कर रहे हैं, तो कैसे ये जो चेंज था वो एकदम ड्रास्टिक जो है वो कैसे आपको अफेक्ट किया? मैं मेरा मैनेजर को थोड़ा मिस कर रहा हूँ आजकल। ओके ओके, मैनेजर को जो लोग नहीं जानते, मैथ्स वाला वीडियो देखो। लाइक जनरली लाइफ में एटलीस्ट एक बंदा था जो हर दिन सुबह कॉल करता था, बोलता था कि आज करना क्या है। आजकल मैं बस लाइक कभी कभी मैं लैपटॉप खोल के बैठ जाता हूँ, कुछ मेल आएगा शायद करके, लाइक यू नो वो डायरेक्शन थोड़ा यू नो अभी खुद का मैनेजर बन गया ना, सो आई टुक लॉट ऑफ टाइम टू एडजस्ट टू दैट। तो अभी लाइक इवन स्टार्टिंग टू डू शोज अगेन एंड गेटिंग एक्टिव ऑन सोशल मीडिया अगेन, it took me like some 4-5 months because Jan mein main job quit kiya, I was in full like you know I was ready to quit, I was ready to quit, I was ready to take my career forward. फिर अचानक ऐसा कोई चमगादड़ खा लिया, तो चाइना में चमगादड़ खाया और पूरा दुनिया में ताला लग गया। हाँ, तो मैं इधर बैठा हूँ यार, अभी मैं अब भी जॉब क्विट किया अभी, लाइक बिकॉज हम जाके परफॉर्म कर रहे थे पब्स और रेस्टोरेंट्स पे, ऐसा पब्लिक गैदरिंग में, लाइक वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट वी नीड फॉर डूइंग स्टैंड अप कॉमेडी इज नो सोशल डिस्टेंसिंग। यस, लाइक हम लोग बात करते थे कि ऐसा अगर रूम छोटा होता और हम पैक कर देते लोगों को और ज्यादा हंसेंगे। यस यस, दैट वाज आवर स्ट्रेटजी टू मेक पीपल लाफ। ताला बंद कर देंगे, कोई भागेगा नहीं यहाँ से अभी। अच्छा, सो विवेक भाई, एक चीज और कि ये लॉकडाउन में अभी आपने रिसेंटली काफी सारे शोज किए हैं, बट स्टार्टिंग जो थी लॉकडाउन की, जब मार्च और अप्रैल का जो टाइम था वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था सबके लिए, तो वो आपके लिए कैसा भी था? इट वाज जस्ट मैं बैठ के सोच रहा था कि क्या करूं, और थोड़ा तो कोशिश की है। वी स्टार्टेड ऑफ, तब ऐसा हमको जूम के बारे में पता नहीं था। I mean, few comedians had already started with that, but what we started doing was we started doing open mics on Insta Live. So we used to go live and we are performing to comments essentially, क्योंकि कोई दिखता नहीं है वहां पे, तो हम comments के कर रहे हैं। और ऐसा अगर तेरे को if we say that if you liked the joke, वो हार्ट बटन दबाओ, तो ऐसा मैं परफॉर्म कर रहे, बीच में ऐसा हार्ट्स आ रहे हैं इधर, अच्छा है, that's how I could judge. वहां से वी मूव टू जूम, और जूम में भी एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो गया बिकॉज यू रियलाइज दैट अभी देयर आर टू रूल्स इन स्टैंड अप कॉमेडी। एक तो अपार्ट फ्रॉम योर जोक्स इज दैट वन, यू कीप योर ऑडियंस कंफर्टेबल, टू यू इन कंट्रोल ऑफ द रूम, राइट? ये दो बेसिक रूल्स है स्टैंड अप कॉमेडी का, कीप द ऑडियंस कंफर्टेबल, और व्हाट इज द सेकंड वन? बी इन कंट्रोल। द फर्स्ट रूल, ऐसा मेरे को लग रहा है जूम के बाद थोड़ा ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गया ऑडियंस। हाँ, क्योंकि इसके पहले तो बाहर आते थे, उनको पता था कि ऐसा लेट के देख रहा है, एक बंदा ऐसा जॉगिंग करते करते देख रहा है, तो आई डोंट नो वेयर आई नीड टू, लाइक इनको कैसे कंट्रोल करूं मैं, ऐसा फ्लश का आवाज आ रहा है शो के बीच में। ओ भाई साहब, वो सब हो रहा है मेरे साथ। तो लाइक ये बहुत कंप्लेंट आ रही है। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इंदर भाई ने भी लास्ट टाइम यही बात कही थी कि, मतलब वो बिट मैंने डाला नहीं इंटरव्यू में, बट ये है कि इंदर भाई ने भी लास्ट टाइम यही बात कही थी कि लोग सोते हुए शो देख रहे हैं, एक बंदा देखते देखते सो गया, क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसा कंफर्ट, क्योंकि घर से देख रहे हैं ना, उनको लग रहा है हम यूट्यूब है, तो क्या ही करें हम, तो ऐसे ही हो गया। ओके, सो भाई अब इतनी ज्यादा मैथ्स वाले बिट की बात हुई है, तो चलिए उसके बारे में 2-4 सवाल मेरे हैं, वो मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात ये मेरे को पूछना था कि वो जो बिट है उसको वायरल होने के बाद लोगों ने आपसे ये बोला कि आप ट्यूशंस देना चालू कर दो मैथ्स के।
क्योंकि एंड मैंने आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट उनको मैथ्स नहीं आता है जो मुझे ट्यूशन करा मतलब ऐसा आया होगा ना, अरे बिकॉज यार सबको ना ऐसा हम आई हैव नोटिस दैट अभी लेटली एक ट्रेंड हो चुका है कि हमको साइंस पढ़ना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, पर ऐसा नील डिग्रास टाइसन अगर कॉस्मोस करके एक एपिसोड बना दिया हाँ तो वो देख के बोल देते कि यार साइंस तो बड़ा अच्छा चीज है, और हमको लगता है कि हमको साइंस पता है, राइट? लाइक हाँ, कितने लोगों ने एस्ट्रोनॉमी सिर्फ इनटू द यूनिवर्स देख के स्टार्ट किया है। हाँ, इनटू द यूनिवर्स में स्टीवन हॉकिंग, वो 2 एपिसोड्स एलियन और टाइम ट्रैवल देख के सबको हाँ, स्पेशल रिलेटिविटी पढ़ना है, सबको जनरल रिलेटिविटी पढ़ना है। बट जब एक्चुअल कैलकुलेशन सामने आती है so वो किसी को नहीं चाहिए। तो आई मीन दैट इज लाइक अभी साइंस भी एंटरटेनमेंट बन गया, दिख रहा है, व्हिच इज नो इफ इट्स अ गुड थिंग और अ सैड थिंग, बट साइंस like what they were looking for was entertainment, and I think it should be left at entertainment, right? Tuition मैं शुरू नहीं कर सकता, which is what I'm trying to say, because वहां लगा होगा कि ऐसा एक्स के साथ बात करो, ये वो सब हो जाएंगे बस, और 2-4 इरेशनल लोग आ गए तो और काम खराब हो जाएगा। हाँ, इरेशनल वाला वो भाई। बट ये है कि जब मैंने वो बिट देखा था, मैं सोच के हंसा था, इतना रिलेटेबल था वो। लाइक कैलकुलस करके एक सांप बैठा है वहां पे, उसको नाउ यू आर नॉट सॉल्विंग फॉर द एक्स, यू आर सॉल्विंग एक्स इटसेल्फ, वो सब हिट हुआ एकदम। हाँ, ये क्लास में थोड़ी जाके बोल सकता है ना, लाइक यू हैव टू सॉल्व एक्स इटसेल्फ करके वो बच्चा को बोल रहा हूँ जो 9th स्टैंडर्ड पढ़ रहा है, तो फिर उसका दिमाग तो गया। अच्छा, एक चीज विवेक भाई आजकल जो बहुत हो रही है, लाइक ट्रोल्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, जितना इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ी है उसमें ट्रोल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सो जब आपको कोई ट्रोल करता है, लाइक इन सम वीडियो कोई अगर ट्रोल करता है, तो आप उसको कैसे देखते हो, मतलब कैसे रिएक्ट करते हो उस पे, या इग्नोर मारते हो? मैं छोड़ देता हूँ यार, मैं कुछ नहीं करता, मैं रिएक्ट नहीं करता। कभी हुआ है ऐसा कि आपको किसी वीडियो पे ट्रोल किया है? There's a video called Relationship Fights in Lord Krishna, जो ऐसा उतना have you watched it? Yes. Lord Krishna stand up and left. हाँ, वो बेस्ट था। तो वो ही पार्ट अभी क्या होगा पता है शिवम? So this video they will cut just that part where you said Lord Krishna stand. Yes. और ट्विटर पे डालेंगे और लोग आएंगे पीछे तुम्हारा। That is how trolling works, because they take the video out of context, right? Yes. Just that part where they hate. They can do this with this interview with you. I'm telling you that. Yes. Like that can be a problem. And but if you take the entire context of the joke, घर पे बोलते हैं ना, ऐसा उतना अच्छा joke भी नहीं था वो. Basically, your dad when he's talking about your mom, he might say that कि ऐसा questions पूछती है कि भगवत गीता में भी उसका जवाब नहीं है। You know that uncle joke that people yes. And so is that insulting Bhagavad Gita? No. नहीं, हाँ, but just because I use the word Bhagavad Gita, some people felt that कि यार I am insulting that, so they forgot that words are just words, so वो पहले समझाना पड़ा उनको। पर ये था by the time they were trolling me, I think some bigger comedians with bigger reach who were getting trolled, तो मुझे छोड़ के वहां चले गए। तो okay, so how Bhavneet and Vivek and Johnny happened, like वो channel कैसे start हुआ? We started doing comedy like in 6 months gap. First Bhavneet started, then 6 months later I started doing comedy, then 6 months later Johnny started doing comedy. And I mean, you've been to open mics, so you know that there are like if you look at the comedians there are some very close friends. So we were in one particular group there, and all of us had like a very similar idea about what comedy is for us, right? So then what happened was we realized that so like I told you, the maths video takes 7 months for me to work on, to build, and then to create and all that stuff. So every bit of mine, whichever I put online, I take the utmost care, which means I take a lot of time.
and that is the same with Bhavneet and Johnny also. So the plan was if we three collaborate together, channel में videos regular होगा, Okay. right? फिर किसी ने चमकादड़ का लिया चाइना में और सब सब वहीं आ रहा है यार, सब वहीं आ रहा है, सब वहीं. Okay, what do you feel about like Chennai Express? What do you feel about that movie? यार जब भी ऐसा शाहरुख खान कुछ करता है ना, एंड आई डोंट नो, एटलीस्ट लाइक कुछ तो रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है ना यार साउथ इंडिया के लिए कि चेन्नई एक्सप्रेस करता है. एंड आई हैव टू से अबाउट चेन्नई एक्सप्रेस कि दीपिका पादुकोण जो उसका एक्सेंट थी, सो आई मीन इट्स ऑब्वियसली नॉट हाउ तमिल पीपल स्पीक इन हिंदी, राइट? बिकॉज तमिल पीपल डोंट स्पीक इन हिंदी. तो Tamil people speak in Hindi mixed with English and then a bit of Tamil. Like if they talk. जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा this is what Deepika Padukone should have sounded like. तो जैसा मैं बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि this is Tamil Hindi accent and this is a very rare phenomenon. तो not for me. हाँ यार, तुम तो दिल्ली में तमिल में पढ़ा यार. अच्छा, एक चीज विवेक भाई हमको ये बताइए कि लाइक जैसे अब साउथ में जितने भी लोग स्टैंड अप करते हैं, तो जब वो नॉर्थ में आते हैं, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा वगैरह में, तो कैसा ट्रीटमेंट मिलता है आप लोगों को? लाइक हम लोग तो जब दिल्ली से अगर मुंबई भी जाते हैं तो बहुत ही अलग ट्रीटमेंट मिलता है. लाइक अलग ही हमारा माहौल चल रहा होता है. काफी सारे दिल्ली कॉमिक्स ने ये वाली बात कही है. तो आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है जब आप यहाँ दिल्ली में आके परफॉर्म करते हैं या फिर नॉर्थ के किसी भी साइड में आके परफॉर्म करते हैं? तो I mean, utna, so whenever I've come, I've met like, so I know like few comics in every city, wherever they are. And so there is a friendship which already exists over online. या कहीं देखो, or you've met at a comedy festival type thing and you get to know each other. So those are the people that I generally hang out with. Otherwise, if you're talking about the cities, comics and all, I think like Mumbai जब भी मैं जाता हूँ, it feels I'm in a place of celebrities. I went there to meet Akash Mehta basically and do a show there. I'm a big fan of the city and Akash Mehta. If he is watching this video, like I'll forward it to him. ये बस ये clip डाल देता हूँ. So when I met, he was taking me around, having me meet other comedians. I was like, ये YouTube में है, ये YouTube में है, ये YouTube, सब YouTube में मुंबई से. So I was like, wow, that is like pretty interesting. Delhi, I have like outside my circle of people that I know. I found that I've not really communicated with the other comedians because it's always like कैसा देख रहे हैं, and sometimes they don't know that I'm a comic also because I'm just sitting there at an open mic and I'm like you know, like I'm not that popular also. तो मैं जाके बैठ जाता, I'm sitting with someone and there's not much conversation happening and all that stuff. Where else have I performed? North. बाकी सब colleges थे यार, जो which is basically the same as you know. ये तो comedians की बात है. इस crowd कैसे react करता है? Like जब आप north में perform करते हो and then south में perform करते हो, तो difference कैसे, मतलब कैसे लोग relate करते हैं? अच्छा, it's basically reference का game ही है. तो अगर तुम्हारा crowd तेरा show पे आ रहे हैं, तो everybody knows what to expect from me. If I'm performing in line-up, then I feel that Delhi people are more, they come when knowing that they're going to laugh, right? So I feel that Delhi's audience is something which takes the energy to a very different level. They are like sitting there, when they come to a show, they are like हंसने वाले हैं. South में थोड़ा शर्माते हैं लोग, लेकिन हंसूं क्या करके, like that is something which I've, like अगर हैदराबाद में मैं I'm from Hyderabad and if I have to perform in Hyderabad, I have to like first spend the 10 minutes saying कि यार ठीक है यार, सब comfortable हो जाओ, कोई नहीं, हंसो, कुछ नहीं, 10 मिनट बात करना है, उनको बोलना है कि सब ठीक है और हम बस जोक ही मार रहे हैं, ऐसा सीरियस नहीं है, इतना गंदा नहीं चल रहा है हमारा लाइफ. लाइक तुम जोक मार रहे हो खुद पे
they start giving suggestions and all. So we have to like like this is so weird, man. Like if you are like making joke of yourself and somebody start, अरे यार ये try करो ना. Like why? तुम विपासना क्यों नहीं ट्राई करते हो? I'm like यार मेडिटेशन करो यार, फोकस आ जाएगा लाइफ में. तो साउथ इज वेरी स्वीट दैट वे. अच्छा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लाइक सभी स्टैंड अप कॉमेडियन से पूछना चाहिए, फैमिली कैसे रिएक्ट करती है जब आप अपने सेट्स में गालियां यूज करते हो? तो लाइक अब तो बहुत ही कॉमन हो गया गालियां यूज करना, बट वैसे जब फैमिली पहली बार आपको देखती है तो कैसे रिएक्ट करती है फैमिली की, यार तू गाली दे रहा है, तो कैसे रिएक्ट करती है? तो वो मेरा ब्रेकअप का बिट है एक, नेहा वाई करके, एंड I think I've said the word fuck around 57 times in that set. तो मैं ऐसा पेरेंट्स के सामने परफॉर्म कर दिया वो. तो they were sitting in the office when I had to do that bit, and देख के अच्छा था, because ऐसा लोग तो पागल हो गए उस बिट पे, because it's like a very emotional bit where I'm talking about my breakup और उसको तुम फनी बना रहे हो. So there is this thing that where the entire audience is like, going crazy about it also. And two parents are sitting like कि अच्छा appreciation तो मिल रहा है इसको, पर ये क्या, ये कैसा बातें कर. Like it's so it was a very dicey thing for them. So they haven't like really addressed it to me, but they've made it known that it is like कि अगर तुम कर रहे हो तो तुम करो, हमको मत बताओ. Like my mom asks me कि इस शो पे आना है क्या, ये वीडियो देख क्या, तुम बताओ तुम्हारा मैं डिसाइड करूंगा. सही. That is where we've left this thing. Okay. अच्छा, अब हम लोग एक चीज, थोड़े कॉमन क्वेश्चंस जो लोग जानना चाहेंगे आपके बारे में. सबसे पहली बात, मार्वल या डीसी? ये एक रैपिड फायर की तरह है, रैपिड फायर, लाइक मार्वल या डीसी? ठीक है, मार्वल. ओके, सो मार्वल का कौन सा कैरेक्टर बेस्ट? आयरन मैन. ओके, सो अगर आपको डीसी में से कोई बंदा मार्वल में चाहिए हो तो कौन सा लेंगे आप? बैटमैन. बहुत बढ़िया. ओके, सो अच्छा, अंजना ओम कश्यप या अर्नब गोस्वामी? Sorry, man. Okay, so you don't know. South India, man. Like, you are really lucky, man. You are really lucky that you don't know these people. I know the second person. उसका आवाज तो आता है साउथ तक. तो ना, उसका स्टूडियो वहीं मुंबई में, so it is a bit closer to you. कुछ भी. So हाँ. Okay. I don't know who Anjana Om Kashyap is. I'm sorry. Okay, so let's change it. अर्नब गोस्वामी और कुणाल कामरा? कुणाल कामरा, of course. Okay. अच्छा, बॉलीवुड, हॉलीवुड या एनी साउथ इंडस्ट्री? हॉलीवुड में which genre of movie? I mean, genre छोड़ दो. Christopher Nolan is someone who I really look at. Like Batman trilogy. अभी एक और आ रहा है अभी. Forgot the name of the movie. I'm like waiting for that to start off. Inception, Interstellar. All of that was made by him. Okay. Christopher Nolan. वो genre क्या है पता नहीं, पर वो जो भी है वो. Like directors, like kind of directors का movie अच्छा लगता है. Okay, so which is your favorite food? साउथ इंडियन थाली. जिसमें सब कुछ होता है, ऐसा सांबार से, रसम से. Like I've grown up on that, so I'm like, नहीं, it is a great choice, man. Like you want more, not like सिर्फ सांबार है, डोसा है, बस चटनी है, बस. You want everything. मेरे को मीठा भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए. Like वो खाना नहीं, वो एक प्रोसेस है. मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ. Like that is what I like. बहुत बढ़िया. अच्छा, एक चीज, वाई नेहा वाई का सेट तो हो गया, बट व्हाट इज नाउ? लाइक अभी विवेक भाई सिंगल है कि
someone is there. अरे इसका यार अगर इसका मैं जवाब दे रहा हूँ ऐसा बहुत लोगों से कंसेंट लेके ऐसा बात करना पड़ेगा तो थोड़ा स्किप कर लेते हैं क्वेश्चन बट आंसर द क्वेश्चन राइट नाउ तो लेट्स सेंसर दिस क्वेश्चन सेंसर बोर्ड ने इस पे अपनी कैची चला दी ओके ठीक है योर फेवरेट एक्ट्रेस इंडिया विद्या बालन oh very good choice favorite actor इरफान खान okay हाँ he was a great actor okay so what was your choice like it is a very different question like what is your preference if you suggest anyone any science related book like not a Sapiens करके Sapiens yeah Sapiens so what is it about it's about the entire history of humanity. As how we became who we are right now and from the point where we were Australopithecus to becoming Homo and then like all the different kinds of sapiens Homo genus which was there and then how Homo sapiens came and about till today as to what we have become. So it's a book about that. It's got some very interesting ways to look at humanity as to who we are as a whole itself, but with pura scientific evidence, with whatever today's scientific data is there. It's a summary of that with a lot of philosophical questions for you. तो अब ये वाला मैं इंस्टा पे डाल दूंगा कि क्या अगर साइंस की ट्यूशन लेनी तो विवेक भाई से लो लाइक मैथ्स के बाद अब नया है साइंस साइंस का भी लो यार एक बना रहा था यार सचिन तेंदुलकर के बारे में एक 17 मिनट वीडियो था मेरा एक फिर तेरे को पता है क्या हुआ ओके सो इस क्वेश्चन से इस चीज से काफी ज्यादा अच्छा ये सवाल है कि फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका MSD he is retired now सॉरी मैन अभी बताना है मेरे को विराट कोहली वैसे पसंद नहीं है विराट कोहली आपको पसंद नहीं है हाँ RCBN ये डायलॉग है नहीं तो रीजन इज वेरी सिंपल मैं सचिन का बहुत बड़ा हूँ ठीक है और सचिन का अभी जो बचा है हिज रिकॉर्ड्स और वो आई डोंट वांट इट टू गेट ब्रोकन फॉर बाय समबडी 20-30 years like at least तो अभी पास आ रहा है and that is the only reason why I'm like यार आउट हो जा but बहुत बढ़िया ये बहुत ही ज्यादा एक ईमानदारी वाला इंटरव्यू और ईमानदारी वाले सारे जवाब आपने दिए अच्छा सो विवेक भाई अब इसको रैप अप करते हैं तो एक एडवाइस जो आपकी तरफ से आप नए इमर्जिंग स्टैंड अप कॉमेडियंस को या फिर जो भी बंदा YouTube पे कुछ स्टार्ट करने जा रहा है उसको आप देना चाहो कि किस तरीके से अभी स्टार्ट कर सकते हैं किस तरीके से यार बेसिक like जैसे भी whatever the route that you're taking either you be a stand up comedian or a YouTube उसको क्या बोलते हैं YouTube का हाँ अच्छा ठीक है तो either it's a stand up comedian or a YouTuber I think the only real thing that you need to learn is an amount of discipline and you need to work on it every day like have like very small steps and one thing is that don't be scared of rejection like if you crack a joke people don't laugh if you break at that point that is what is stopping you from becoming better like if you say that if you get embarrassed and you're saying that कि मैं इसके बाद नहीं करूँगा don't do that like it's okay if you fail it's fine it's cool like you can take it on the straight just keep what you're doing what you're doing try to learn more things yeah I guess that's it like I mean be dedicated in your work वो बहुत important ओके सो विवेक भाई हमारे साथ जुड़े हैं और एक चीज अभी आप लोगों ने देखा कि ऑन द स्पॉट कितनी फनी चीजें जो है वो अभी होती हैं ऐसे ही जूम पर अगर आप लोगों को शोज देखने हैं विवेक भाई के
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप लिंक पे जाकर क्लिक करके जूम के शोज का टिकट बाय कर सकते हैं। डेली शोज हो रहे हैं इनके, ये नहीं कि एक दिन 2 दिन, डेली शोज होते हैं इनके, और डेली ये इंस्टाग्राम लाइव भी करते हैं। तो इंस्टाग्राम पे जाके सबसे पहले तो इनको फॉलो करो, फिर इनका जो शो का टिकट है वो आप लोग परचेज करके आप लोग शो एंजॉय कर सकते हैं। मैं भी कई बार देखता हूँ इनके शोज, काफी फनी रहते हैं और काफी मजा आता है। तो जाइए फॉलो कीजिए सबसे पहले इंस्टाग्राम पे, देन उसके बाद शो का टिकट खरीदिए और फिर शो एंजॉय कीजिए। और शो में यार सोया होया मत करो यार, ऐसे मतलब कॉमेडियंस को बुरा लगता है यार, मतलब तुम ऐसे सो के शो नहीं देख सकते। सो हाँ, ये सारी चीजें। विद दैट बीइंग सेड, विनय भाई हम विवेक भाई हम रैप अप करते हैं यार। यो रखो ठीक है, ये रखो ठीक है। ओके विवेक भाई, अब हम आपसे विदा लेंगे। सो काफी अच्छा लगा आपसे बातें करके और आपसे काफी सारी बातें सीखने को मिली, क्या होता है स्टैंड अप कॉमेडी में और अलग अलग जगहों पे किस किस तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी चेंज होती है और किस किस तरह से ऑडियंस जो है वो रिएक्ट करती है। ये आपने काफी अच्छे से मैं बताया, और लोग का जो थोड़ा सा आउटरीच भी होता है वो भी, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपने हम लोगों को बताया। तो आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा। सो अब हम यहाँ से साइन ऑफ करेंगे। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। थैंक्स मैन, थैंक्स अ लॉट।